प्रोसेशन में गया था। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है। गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए। लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। गलासी तीर मारी गए है, पेट पर मारी गए है। और इनकी वोट की राजनीति है जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। उसी में दौरान 2 गोलियां, एक 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। थी धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारिदीन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। Viewers, what's in a name? If you are a close observer of politics in UP, perhaps everything, because what you just watched and heard from Akhilesh Yadav, the tone and tenor would have in all likelihood been completely different had the victim of the murderous mob in Bahraich not been a Ram Gopal Mishra. Because nothing else explains this absolute lack of condemnation for the brazen killing of a Durga devotee. This almost contemptuous disregard for a Bhakt brutally shot dead. And this is disturbing at so many levels. In today's world, viewers, where social media amplifies every voice, a disturbing trend has emerged, that is selective condemnation of hate. Some individuals and groups reserve their outrage for specific instances, while conveniently ignoring or downplaying others. Viewers, this hypocrisy undermines the fight against hate and intolerance, fostering a culture of double standards. What's even more dangerous is the attempt to justify violence with a warped action-reaction logic. You heard that right, action-reaction. Just think about this. A man is killed in cold blood and you're told to look at the kind of music that was being played during the procession of which he was a part of. Viewers, the murder of Ram Gopal Mishra, a 22-year-old Durga devotee in Uttar Pradesh, exemplifies this selective outrage and injustice. While opposition parties and activists have remained silent, some have almost justified the killing. Then there are those who swiftly and smartly resorted to token action. This disparity highlights the pervasive double standards. The silence of the self-proclaimed human rights champions in cases like Ram Gopal Mishra's murder is deafening. Their collective concern for human rights speaks volumes. When will they recognize that every life lost to hate is a tragedy regardless of background? Viewers, selective condemnation of hate is a pernicious phenomenon that undermines the so-called Mohabbat ki Rajniti. जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में आएंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की घटनाएं वो घटाई जाएगी, क्योंकि इनको मालूम है कि सेंसिटिव जगह कहां कहां है। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना। ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। Let's open this up. Shehzad Poonawala, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Karan Verma, author, political analyst, Tehseen Poonawala, political analyst, IP Singh, national spokesperson of the Samajwadi Party, and Muhammad Adil Hassan, spokesperson of the AIMIM, completes the panel. IP Singh ji, सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने एक बार भी इस हत्या का खंडन क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी के जो मीडिया डिपार्टमेंट का ट्वीट है उसमें तो एक्शन रिएक्शन लॉजिक दिया है उन्होंने कि उसने ये किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पटेंगे तो कटेंगे। आपने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को आपने ज्वालामुखी बना दिया।
आपने इस तरह के माहौल उत्पन्न कर दिए। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा हो, 2027 आज ही आ गया हो। और ये रवैया जो सरकार का है, ये कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। 1 महीने में लखनऊ में 5 गैंगरेप हुआ। आज 14 साल की बेटी के साथ 3 लोगों ने राजधानी के अंदर गैंगरेप किया। आरएसएस मुखिया, प्रधानमंत्री, भारत आईपी सिंह जी, क्या सवाल पूछा मैंने, क्या जवाब दे रहे हैं आप? इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आपको जवाब देने में? इस युवक का नाम है राम गोपाल मिश्रा। आपको याद होगा अखिलेश जी ने एक बार एक पत्रकार से क्या कहा था? अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला देता हूं आपको। उन्होंने कहा था, मिश्रा जी आपको शर्म आनी चाहिए। अब मिश्रा जी के बारे में अखिलेश जी बोल क्यों नहीं रहे? नेताजी चुप क्यों हैं? देखिए, आग आप लगाएंगे और बयान हमारा सुनना चाहते हैं। आप गांव-गांव, कस्बे आप क्या धुन बजाते हैं? क्या बज रही है? क्या कहा जा रहा है? तो एक बात बताइए, राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु की वजह क्या है? क्या महाराष्ट्र में हो रहा है? आईपी सिंह जी, राम गोपाल मिश्रा की हत्या की वजह क्या है ये बताइए। लगाने का काम किया है। राम गोपाल मिश्रा को गोली क्यों मारी गई, इसका जवाब दीजिए। आईपी सिंह जी, जी, राम गोपाल मिश्रा को गोली क्यों मारी गई, इसका जवाब है आपके पास? सवाल राम गोपाल मिश्रा का नहीं है। अगर हिंसा में, सांप्रदायिक हिंसा में किसी की भी मौत होती है, किसी की भी मौत नहीं हुई ना, राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है। वो दर्द सबको होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। 99% जनता शांतिपूर्वक रहना चाहती है। अशांति पैदा किसने किया? माहौल खराब किसने किया? ये देखिए, अखिलेश यादव जी का ट्वीट है, इसमें कहीं नाम भी मेंशन नहीं किया उन्होंने। शायद उनको शर्म आ रही है नाम लेने से। ये देखिए, नाम नहीं लिया। ये आपका जो पीडीए का न्याय है वो कहां चला गया? शहजाद पूनावाला, व्हाई डू यू थिंक राम गोपाल मिश्रा हैज बीन कंडेम्ड इवन इन डेथ? सबसे पहले तो जो यहाँ पे ज्वालामुखी और माहौल की बात कर रहे थे, तो अखिलेश जी के ज़माने में 700 दंगे, फैज़ाबाद 2012, गाजियाबाद 2012, बरेली 2012, प्रतापगढ़ 2012, मुजफ्फरनगर 2013, मुरादाबाद 2014, सहारनपुर 2014, हम भूले नहीं हैं। दूसरी बात, क्या गलती थी राम गोपाल मिश्र की कि हरा झंडा लगाएंगे तो मार दिए, हटाएंगे तो मार दिए जाएंगे, म्यूज़िक बजाएंगे तो मार दिए जाएंगे, यात्रा तथाकथित मुस्लिम एरिया में ले जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। ये लिबरल्स का स्टैंडर्ड है। और आज हम लोग केवल बहराइच नहीं, बहराइच तो एक सिम्टम है। डिजीज क्या है, वो मानसिकता क्या है जिसके पीछे ये पूरा कारण है, आपको मैं बताना चाहता हूं। ये पहला हमला नहीं है। आज हम लोग देखें 24 में 7 हमले हुए हैं। अभी आज ही नू में बंगाल के हावड़ा में हमला हुआ है एक तस्वीर को लेकर। 2023 में 29 ऐसे हमले हुए हैं। रांची में, झारखंड में एक हमला हुआ जहां पर रुपेश पांडे सरस्वती पूजा करके आया था। किसी पर कोई ना म्यूजिक चलाया, ना झंडा हटाया, कुछ नहीं किया, उसको भीड़ ने मार दिया। हाई कोर्ट ने उसका केस सीबीआई को दिया है। ये होता क्यों है? 2 कारण है इसके। एक कारण तो ये है कि कुछ लोग हैं, व्हाट्सएप स्टेटस से वो परेशान हो जाते हैं, हमला कर देते हैं। गाना बजता है डीजे पर तो वो हमला कर देते हैं। फिर वो कहीं यात्रा निकल जाती है, शोभा यात्रा निकल जाती है तो वो तक गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि हमला करने से पहले इनके पास हथियार, औजार, पत्थर सब तैयार कैसे होते हैं? अगर ये स्पॉन्टेनियस है, अगर बहराइच स्पॉन्टेनियस है, अगर हावड़ा स्पॉन्टेनियस है, तो इनकी छतों पर ये पत्थर जमा करके होते कैसे हैं? ये तलवारें, जो धारदार तलवारें होती है, वो होते कैसे हैं? और दूसरी बात, जो ये इकोसिस्टम कवर फायर देने आता है, अभी अखिलेश जी ने क्या बोला, डीजे म्यूजिक कौन सा बज रहा था, रूट क्या लगाया था? मैं तो कहूंगा सर तन से जुदा से ज्यादा कोई प्रोवोकेटिव नारा है क्या? और अगर ये प्रोवोकेटिव नारा है तो कैसे फिर उसकी भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर तो बहुत सारी चीजें बजती हैं दिन में, तो क्या उससे भी कोई लोग उत्तेजित होकर क्या कोई प्रतिक्रिया दे क्या? यह किस प्रकार का तर्क है? और आखिरी बात, बंगाल में जब रामनवमी वायलेंस हुआ था, प्रणेश आपको याद होगा, तो ममता बनर्जी सेड व्हाई डिड द पीपल गो, द हिंदू गो टू द मुस्लिम एरिया विद द यात्रा?
मतलब इस देश में अब 370 लगेगा कुछ एरियाज में। दूसरा, उन्होंने कहा था कि इफ्तार और रमजान होता है तो मुस्लिम कभी किसी पे हमला ही नहीं कर सकता, मतलब क्लीन चिट दे देना। अभी कर्नाटका में गणेश विसर्जन पर हुआ तो बोला एक्सीडेंट था। तो ये जो क्लीन चिट देने के लिए इकोसिस्टम आ जाता है। मैं इससे पूछना चाहता हूं, ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये हमले करने के लिए कि यहां से यात्रा जाएगी, फिर प्रोवोकेटिव म्यूजिक होगा, फिर मैं पत्थर चलाऊंगा, तो ये एडवांस में पत्थर कैसे आ जाते हैं? आईपी सिंह जी, ये बता दीजिए। अरे भाई, आप अपनी सरकार से पूछिए ना। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, दंगा उनके, सांप्रदायिक दंगा उनके राज में हो रहा है। आप कह रहे हैं परिंदा पर नहीं मार सकता, और सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं तो एक बात बताए आईपी सिंह जी, नहीं, आप सवाल तो राज्य सरकार से सवाल जरूर पूछिए। मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव जाएंगे राम गोपाल मिश्रा के घर, या कोई बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता जाएगा वहां पे? आप बोलिए, नहीं, इंसाफ की गुहार लगाइए वहां जाके। अरे प्रणय जी, क्यों नहीं जाएगा? काश आप जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे, काश उनसे भी कुछ सवाल पूछ लिए होते कि आखिर कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। अब बुलडोजर आप चलाते हैं, इनकाउंटर नहीं तो क्या बुलडोजर चलना चाहिए? जो एफआईआर में 6 लोगों का नाम है, 4 अनआइडेंटिफाइड है, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? आप बोलिए, अभी आप बुलडोजर मॉडल की बात कर रहे हैं आईपी सिंह जी, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपको एक सिंपल से सवाल पूछा। आईपी सिंह जी, you have a habit of doing this. I asked you a simple question. Why did Akhilesh Yadav not even mention Ram Gopal Mishra by his name? What has Priyanka Gandhi done? Tehseen Poonawala. This is the tweet by Priyanka Gandhi Vadra. Where is the name of the person who lost his life? Ram Gopal Mishra, who was shot dead in cold blood. Pranesh, at the onset, let me take this platform to offer my deepest condolences to Ram Gopal Mishra ji's family, to his friends and his loved ones. I'm extremely sorry, and it's extremely unfortunate something like this has happened. Number 2, may I ask you something, Pranesh, and I don't want to make this political, so I'm not making a political statement. Somebody's died, there's been communal clashes. Let's just ask certain basic questions, and you have all the right to ask Priyanka ji questions, Akhilesh ji questions, and I respect that. When will the Chief Minister of Uttar Pradesh resign? As the BJP spokesperson on your show said, and I quote him, I was writing down the points he said, how were so many stones accumulated? What was Vrinda Shukla doing as SP? What was her intelligence doing? Intelligence, not personally, I'm talking about the intelligence network. Were they snoozing? Is this the first incident of stone throwing? It isn't. It happens in a lot of our Hindu brothers and sisters festivals that the BJP spokesperson has alluded to. Since it happens and it's become a pattern, didn't the SP have intelligence enough? Now I'm talking about her personal intelligence that something like this can happen, and therefore ask her intelligence on the ground to gather information. Where are those world famous drones, Make in India drones? Couldn't have been flown to see where stones have been accumulated, swords or any other material of arson? Now let's come to the larger issue at hand. Law and order, a state subject under Yogi Adityanath ji. What has he achieved except for violence? So I went back to the pattern of all the violence that have happened during religious festivals, and I realized one thing. Most of these happen at a time during elections, and the only 2 political parties to benefit from violence across the country is the BJP or its sister alliance partner, the MIM. They polarize and there is violence, and parties like SP, Congress always pay the price. I'm asking you, please ask Akhilesh ji questions, please ask Priyanka ji questions, but someday ask the Chief Minister how badly he's failed in the state of Uttar Pradesh. Shehzad will answer that question. Why isn't the SP you are raising questions about the law and order. No, 1 minute. Before you answer that question, Tehseen, look, even if what you're saying is true, that the state has failed miserably, does that mean that Ram Gopal Mishra does not deserve justice, does not even deserve a mention in the tweet by the who's who of people who talk about Nyay and Mohabbat ki Rajniti? Why is it so difficult? If you can take the name, why can't they? I promise you, if Akhilesh ji or Priyanka ji were Chief Ministers of Uttar Pradesh, Ram Gopal Mishra ji's family would have got justice. Only if they become Chief Ministers will they deliver Nyay to all. Okay, Shehzad, respond to the question that Tehseen asked. 1 second, just 10 seconds. The hypocrisy of Tehseen 5 seconds, I'll just take 5 seconds. 5 seconds, just 5 seconds more. 5 seconds more, 5 seconds, just 5 seconds, I won't take more than that. Amitabh Yash rushes there
What is Amitabh Yash? Where has Amitabh Yash been when all these Chal. people were being encountered? Chal. Amitabh Yash onwards, everyone should be held accountable, right down to Okay. Vrinda Shukla. Let's hear the All of them response. should be asked to Shehzad, the leave. state failed. Now, Tehseen Poonawalla, who comes here and gives condolences to Mr. Mishra, clean chit is given by his ally Samajwadi Party saying that there was a provocation. The loud music and the DJ music was provocation, therefore it was justified. The ecosystem says कि एक झंडा हटा दिया, therefore the killing of Mishra ji is justified. And Tehseen Poonawalla comes here and says नहीं नहीं हम तो मिश्रा जी के साथ है. तो Tehseen Poonawalla एक बार बोलिए प्रियंका जी से ट्वीट करे कि no matter what flag he took off, no matter what music he was playing, Mishra ji doesn't deserve to die. ये कैटेगोरिकली बोलो भाई. दूसरी बात, आप बता रहे हैं MIM के बारे में. MIM के बैक टू बैक 2 केसेस कर्नाटका में राइटिंग के विड्रॉ किए आपने जब से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट मिला है ओवैसी का. डीजे हल्ली का केस अभी विड्रॉ करने की तैयारी करे. बीके हरिप्रसाद बोल रहे कि ये भी विड्रॉ कर दो. आज आपने प्रो हिजाब प्रोटेस्टर्स का केस विड्रॉ किया, कल आपने हुबली राइट्स का केस विड्रॉ किया. जो केसेस कोर्ट से राहत नहीं मिल रहे, कांग्रेस पार्टी उन दंगाइयों को क्लीन चिट देते हुए बोल रहे हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं दंगाइयों के खिलाफ. तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला, आपने बोला क्या अचीव किया है? 70% ड्रॉप इन डकॉइटी, 29% ड्रॉप इन मर्डर्स, 69% drop in looting, 52% drop in rapes, 71% conviction rate in rapes. This has been achieved. 700 riots under Akhilesh. You used to say UP badal hui. Today you don't say that. This has been achieved in the UP government under Yogi Adityanath. But my question is only one. Tehseen Poonawalla, since you have zero tolerance on rioters, why did you give clean chit to MIM rioters in Hubli? वो बताओ. Tehseen, think about it. I'll come to you. Let's quickly bring in the AIMIM. Adil Hassan. May I? No, I'll come to you, Tehseen. I'll come to you. Let's bring in the others. Karan hasn't spoken. Sure. Adil Hassan, राम गोपाल मिश्रा को किस गुस्ताखी की सजा मिली है? सबसे पहले प्रणय साहब, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डीएमएसपी अगर कहीं पे भी डीएमएसपी अगर चाले तो 45 मिनट के अंदर में वो उपद्रव को खत्म हो जाएगा. एक दिन दंगा अगर हुआ, कुछ वो हुआ, दूसरे दिन कभी नहीं होना चाहिए था. क्या मिश्रा जी के परिवार को वहां के डीएम और वहां के एसपी के तनख्वाह से उसको कंपनसेशन मिलेगा? क्या उन पर एफआईआर होगा? क्या वहां का एडीजी हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस आईजी क्या कर रहे थे? क्यों नहीं वीडियोग्राफी हुई? सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि जो भी प्रोसेशन जाएगा, चाहे किसी भी कम्युनिटी का, उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए. पुलिस क्यों नहीं एडवोकेट? अभी तो योगी आदित्यनाथ जी 5 दिन पहले पूरा डीजीपी और पुलिस प्रशासन का उन्होंने रिव्यू मीटिंग की थी. अभी उन्होंने कहा था, लेकिन यति नरसिंगा जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी किया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक. ना एनएसए लगा, ना यूएपीए लगा. और मैं बतला दूं, तहसीन जो बोल रहे हैं, तहसीन से पूछिए कि तेलंगाना सरकार ने अमित शाह का केस वापस लिया है. तहसीन से पूछिए जो अपने भाई को अपने कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी में नहीं रख सका, वो तहसीन किसको आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? आप बतलाइए. अपने घर में तो आइडियोलॉजी एक दूसरे का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं. नहीं तो ये एक बात बताइए. अरे कंसर्न इज दैट नहीं ये दोनों भाईजान पे कहां आ गए आप? वो उनकी आइडियोलॉजी अपनी है, शहजाद पूनावाला की अपनी आइडियोलॉजी. मैंने जो आपको सवाल पूछा कि क्या गुस्ताखी थी और क्या सजा मिली, उस पे आप जवाब देना चाहेंगे आदिल? मैंने तो बोल दिया. क्या गुस्ताखी थी? क्यों मरा राम गोपाल मिश्रा की जान क्यों गई? स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, ये डीएम और एसपी की लापरवाही, आईजी इंटेलिजेंस की लापरवाही, इन पर 302 मुकदमा चलना चाहिए. इन्होंने एक घर में चिराग बुझाने का जवाबदेही वहां के जिला प्रशासन का है और वहां के डीएम एसपी पर 302 होना चाहिए. उनके नेग्लिजेंस से, उनके आराम तलबी से, उनके गफलत में रहने से ये पूरे घटना हुई है. एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं आदिल हसन, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए. लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जो है, जो न्याय और मोहब्बत की बात करती है, उनके मुंह से नाम क्यों नहीं निकल रहा है? वो सवाल है. करण वर्मा, व्हाई आर पीपल नॉट नेमिंग राम गोपाल मिश्रा द विक्टिम इन दिस केस? So Pranesh, this is the same AIMIM. Back in November 2022, 4 of their corporators were chanting Sartan se juda on the streets. And when they were finally picked up by the police, they came about and said, why is the police harassing us? आज ये पुलिस से एक्शन मांग रहे हैं. जब इनके कॉर्पोरेटर सरतन से जुदा की चैंट्स लगा रहे थे खुले में, तब इनको नहीं याद आ रहा था न्यायपालिका और न्याय और संविधान. तब they had completely forgotten this. Anyways, Pranesh, let's understand this.
The same Yogi government back in April, during the Ram Navami processions, made preventive arrests. It arrested 32 people to avoid any sort of untoward incident. In the last year also, in 2022, 2 years before also, they had made 62 arrests. The same Adil, the same AIMIM and the same Congress party said that Yogi has resorted to police raj. Why is he making preventive arrests? When this man makes preventive arrests and when this man brings down riots and dakati and everything by 70 to 75%, they blame him for using extra constitutional ways. They say this is becoming a police state. Now when this has happened, they are saying, why are they not fixing the accountability of the police? Of course the accountability of the police should be fixed. But the accountability of this ideology also needs to be fixed, Pranesh. We can rein in certain elements. What do you do about an ideology? The same ideology that in Koltar village in Perambur district, when they become a majority, they pass a circular that no religious procession of idol worshippers can pass, otherwise it will be subject to attack, and no less than the Madras High Court had to intervene. What does one do of this ideology that is patronized by Mamata Banerjee, which says, "Arey bhai, Muslim ilake mein nahi jana chahiye tha aapko"? What do you do of this ideology where AIMIM and they openly say 15 minute ke liye police hata do? So it is this ideology which is not being addressed. It's fine to hold the Yogi government accountable, even though they've made many preventive measures in the past. Yes, they failed today. But what do you do of this ideology? Let Adil Hasan answer that. सर, उन्होंने अभी एक और बात बता दूं, शलभ मणि त्रिपाठी हैं जो चीफ मिनिस्टर के एक्स मीडिया एडवाइजर हैं, उनको सब मुस्लिम पत्रकार दिखता है। एएनआई में गौरव भाई को हटा दिए, अरोड़ा जी को हटा दिए, वर्मा जी को हटा दिए, उन पर केस होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार को जो आदमी नफरत फैलाता है उस पर होना चाहिए। एक अजीत है जो एक टीम 7 के ट्विटर हैंडल पर वो गाली लिख रहा है, उसको स्मृति ईरानी अप्रिशिएट करती है। आदिल हसन, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आप ये देखिए आदिल भाई फॉलो करते हैं। आदिल हसन, लिसन टू मी, आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन। आदिल भाई, इतना मुश्किल नहीं है। आपसे जब मैंने पहले पूछा कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या क्यों हुई, क्या गुस्ताखी तो बता दीजिए, सजा छोड़ दीजिए, क्या गुस्ताखी थी? क्या वो गलत गाना बजा रहे थे या उन्होंने कुछ झंडा हटा दिया? क्या गुस्ताखी क्या थी? प्रणय साहब, किसी की भी मौत हुई उसकी हम मजम्मत करते हैं, किसी की भी हो। नहीं, वो तो हो गई। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं गुस्ताखी क्या थी, गलती क्या थी? मैं आपके चैनल में मजम्मत तो मैं तो बोल रहा हूं, गुस्ताखी थी कि डीएमएसपी का नेग्लिजेंस था, एडीजी हेडक्वार्टर का नेग्लिजेंस था, इंटेलिजेंस आईजी का इंटेलिजेंस था, उसने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को नहीं माना, उसकी पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस ने चाहा कि उत्तर प्रदेश में आग लगे। ये पूरी लापरवाही है पुलिस प्रशासन की। ठीक है, तो पुलिस आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अंडर जो पुलिस है बहुत सॉफ्ट है, ये इसको याद रखिएगा। शहजाद, देखिए, अभी आदिल जी ने मेरे और मेरे परिवार के विषय में बात की कि ये विचारधारा तो मेरे पर नहीं लागू हो पाए, मैं तो कहीं और चला गया। अरे आदिल भाई, इतने वर्ष हो गए पर आपने रजाकारों की गुलामी कहाँ छोड़ी है? अभी भी आप संविधान के प्रति कहां वफादार है? इम्तियाज जलील बोल रहा था ना कि लटका दो चौराहे से। ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान आप टाइम्सों पे देते हैं, जरा इम्तियाज जलील को दिया था कि नहीं दिया था? एक बार ये ज्ञान अपने नेताओं को दिया था जिन्होंने कहा था सर तन से जुदा। एक बार उनको दिया था जो हुबली राइट्स में चार्ज हुए हैं, जिनका केस कांग्रेस विड्रॉ कर रही है। और मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, आदिल हसन साहब सुन लीजिए ना, आदिल हसन कान खोल कर सुन लीजिए। चलिए मान लीजिए प्रोवोकेटिव गाना बजाया उसने, कौन सा प्रोवोकेटिव गाना बजने पर जान लेने का अधिकार है वो बताइए ना हमको। कौन सा मुस्लिम एरिया होता है, सो कॉल्ड मुस्लिम एरिया, जहां पर एक शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? वो एरिया डिफाइन कीजिए हमारे को, और बताइए कि क्या कोई हरा झंडा निकालेगा, कोई पीला झंडा निकालेगा तो झंडा निकालने की सजा क्या सर तन से जुदा होगी? 20 गोलियां सीने में डाल देंगे तो बता दीजिए है कि नहीं है। और अगर यह पैमाना है तो बता दीजिए कि फिर कितना रिएक्शन देना चाहिए जो दूसरी तरफ से प्रोवोकेटिव नारे लगते हैं उसके प्रति। बता दीजिए कि कौन सा प्रोवोकेटिव गाना होता है जिसके ऊपर जान लेना अधिकार मिलता है। अन्यथा बताइए कि आप फहीम, सरफराज, साहिर खान, महबूब अली और अब्दुल हमीद को कब कंडेम कर रहे हो? एक बार कंडेम कर दीजिए। मैं कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं। मैं आपकी तरह नहीं चोरी और सीना जोरी नहीं करता हूं। मस्जिद के सामने आप
मस्जिद के सामने आप अभद्र गाना क्यों बनाते हैं? आप क्यों चलिए, आपको एक मस्जिद मिनट। के सामने जिन्नात निकलता है क्या? एक मिनट मस्जिद के सामने जिन्नात इसी निकलता है पे क्या? बहस करते नहीं हैं दिखता है आदिल क्या? भाई, इसी पे बहस करते वहाँ पर गाली गलौज हैं आदिल भाई, कर रहा इसी पे बहस करते हैं ना। हाँ, एक मिनट, गाली एक गलौज मिनट। आज अरे बिहार आप भी में मुसलमान, कैमरों मैं भी में मुसलमान, हाँ, बोलिए, बात आप कीजिए। और मैं दोनों ये मुसलमान। बात सुन ready to लीजिए, talk। सुन लीजिए, सुन लीजिए, 10 सेकंड हाँ। सुनिए, सुनिए, सुनिए। मस्जिद के हाँ, सामने बोलिए। किसी ने, सुनिए, मस्जिद के सामने किसी ने अभद्र गाना बजाया तो उसकी सजा क्या होगी? आप रिकॉर्ड करके पुलिस को देते ना। आप क्या बोल रहे हो? मस्जिद के सामने कोई गाना बजा दिया, मान लीजिए गलत बजाया, मानता हूं मैं गलत बजाया, तो शहजाद नहीं, मान लीजिए गलत बजाया, मैं बोल रहा हूं मान लीजिए गलत बजाया, तो क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने क्या सरपंच से किया? जुदा करेंगे क्या? यति नागिर सिंघा पे अफवाह मतलब ये हुआ। आकर क्या जस्टिफाई उसका कर रहे हैं कि रिएक्शन? मस्जिद के गिरफ्तारी सामने हुई? गाना बजेगा तो मैं सर काट दूंगा। यति नागिर सिंघा पे क्या हुआ? अभद्र है ये इनके जो हिसाब से। ये जो आदिल हसन ने अरे अभी यार, तुम थर्ड गाली अटेम्प्ट मस्जिद में के जवाब सामने दिया, गाली ये करवाइएगा समाज मैं को। इनसे पहले से सवाल पूछ रहा था। मैंने आदिल भाई से पूछा कि क्या गुस्ताखी थी और क्या सजा थी। यति नरसिंगा पे क्यों नहीं एक्शन हुआ अभी तक? सब पे एक्शन होना चाहिए। जो गलत कर रहा है मैं उनको तो आपको पुलिस बोल रहा हूं, यति नरसिंगा पर क्या पुलिस एक्शन पे लिया कार्रवाई योगी होनी आदित्यनाथ चाहिए सरकार ने? आदिल भाई। लेकिन अगर गाना शिलम- क्या शिलम बजेगा मणिपुरी उसके पार्टी हिसाब पर से एफआईआर कार्रवाई करवाइए। होगी, तब तो मुश्किल हो जाएगा। आईपी सिंह जी नहीं, यति, अखिलेश एक सेकंड, आई एम सॉरी, 10 सेकंड। यति नरसिंह आनंद ने जो बोला गलत है, उस पर केस भी हुआ। उसके बाद दासना मंदिर पर बहुत सारे लोगों ने गाली गलौज की, किसी के ऊपर एक भी हमला नहीं किया गया। यही सहिष्णुता और असहिष्णुता का अंतर है। दासना मंदिर पर जिन लोगों ने, जिन जिहादियों ने हमला किया, उन पर कोई हमला नहीं हुआ, और जो दूसरी ओर इस प्रकार से हमला करते हैं वो मार देते हैं बस। आईपी सिंह जी, अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए कि कौन सा गाना बज रहा था। क्या ये क्या है? मतलब किसको पूछें? डीजे से पूछें कि कौन सा गाना बज रहा था? बताइए जी। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उसमें ये भी बात नहीं तो उन्होंने ये भी, कही है। इसका क्या मतलब है? लेकिन सवाल नहीं, सवाल आज मैं पूछूंगा। आप सवाल है क्या है? सवाल क्या है? मैं पूछ रहा हूं सवाल क्या है? आप ये बताइए कि कौन सा गाना बजना चाहिए कि आपकी सलामती बनी रहे। पूछिए, सवाल गृह मंत्री से पूछिए। जो ये आप ये बताइए आईपी सिंह जी कि कौन सा गाना बजना चाहिए? कटेंगे जो आप ये बताइए गाना कौन सा बजना चाहिए? अगर आपको अपने आईपी सिंह जी ऐसे मत कीजिए। कौन सा गाना बजना चाहिए? अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो कौन सा गाना बजाए? आप बता दीजिए। आप देश के लोगों को बता दीजिए that if you play a particular song, it guarantees your safety. बोलिए, which is that song? आईपी सिंह जी, I want you to tell us which is that one song that guarantees safety. You tell me. कौन सा गाना बजाएं जो आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा? बताइए। प्रणय जी, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए ना। तो ये अखिलेश यादव ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं? आदिल हसन, आपका कोई फेवरेट गाना है जो बजना चाहिए? बताइए। उनके लिए सॉन्ग हराम है। होम सेक्रेटरी आदिल भाई के लिए तो सारे गाने कोई हराम ऐसा है। गाना है जो बजना चाहिए? उनके लिए सब गाना हराम है। बोलने दीजिए। बोलिए आदिल भाई, आपके लिए तो सभी कुछ Let him हराम है। speak, let him पन्ने speak. साहब, चलिए यार, मेरा नाम आदिल है, लेट मी स्पीक। शहजाद बोलने दो भाई। पर आपके लिए तो सुनिए, सारे बोलने गाने दीजिए। हराम है एक ना, भी आप तो मुहर्रम One में, at a time, please. एक Let us भी done. मिलादुन नबी के जुलूस में, अरे यार चुप रहो ना यार, चुप रहो शहजाद, चुप रहो यार, इतना भी जल्दबाजी ऐसे नहीं, मत ऐसे करो। नहीं। गोली आदिल भाई, मत चला शहजाद, देना, no, गोली please, मत please. चलाना, Calm गोली down, मत सुनिए, gentlemen, एक भी please. मुहर्रम में, बोलिए आदिल भाई, बोलिए। गोली मत चला। परने साहब, मुहर्रम में, मिलादुन नबी में, मुस्लिम त्योहार के एक में भी किसी दूसरे सेंटिमेंट को, दूसरे धर्म को आज तक गाली नहीं दी गई है। एक गाना ऐसा नहीं बना। अरे आदिल भाई, मैं तो मान रहा हूं, अगर आप जो कह रहे हैं अगर वो हुआ भी है तो क्या किसी को जान से मार देना चाहिए? जान से मार देना चाहिए? तो भाई, तो एसपीडीएम को तो आप फिर जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके सामने आप बोल रहा हूं, जस्टिफाई गलत क्यों हुआ, कर रहे हैं किसी को मारने कि का इस अधिकार नहीं है। नहीं, अभी आपने बोला मैं इस justify स्ट्रक्चर नहीं के कर बाहर रहा ये हूं। गाना बजेगा तो मैं ऐसा बात- होगा। ये मैं आपके गाने की सामने- बात नहीं है। तहसीन पूनावाला, जेन्युइन आप किसी के, आप भड़काओ क्यों, आप इंस्टिगेट क्यों कर रहे हैं? अरे तो इंस्टिगेट करेंगे तो आप मार देंगे क्या किसी को? पैट्रोनेज दे रहे हैं। नहीं, कोई इंस्टिगेट करेगा तो मार देंगे। कानून व्यवस्था, संविधान खत्म हो गया है। ये देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। ये देश किससे चलेगा? आदिल हसन, आईजी को क्यों तनख्वाह मिल आप रही है? एडवोकेट हैं, अरे आईजी को तनख्वाह आप क्यों मिल रही है? एडवोकेट हैं। आईजी डीएमएसपी को तनख्वाह क्यों मिल रही है? नहीं, तनख्वाह उनको दे रही है। अगर उनसे गलती हुई तो उनसे भी जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम आप कोर्ट का जस्टिफाई कर रहे हैं, गाइडलाइन है, वो आप कह रहे हैं follow इंस्टिगेट किया। अगर इंस्टिगेट किया, 302 नहीं का केस इंस्टिगेट कीजिए। किया तो गोली मार देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला है, लॉ गाइडलाइन फॉलो करवाइए एसपीडी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए।
ये आप क्या बोल रहे हैं, इंस्टिगेट किया था उन्होंने, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ तो बोलिए, तो आईजी डीआईजी क्या कर रहा था? क्यों आईजी डीआईजी क्यों नहीं पुलिस एडिक्वेट सिक्योरिटी? तो आईडी, एक बात बताइए, एक बात बताइए आदिल भाई, एक मिनट, आपके घर के आसपास अभी आईजी डीआईजी नहीं है, आपको कोई मार के चले जाएगा, कैसा लगेगा? ऐसा होना चाहिए क्या? सुनिए, ये धार्मिक, सुनिए, ये हर बार होता है धार्मिक, बट ऐसे नहीं बोल सकते नेशनल टीवी पे आदिल भाई, आईजी डीआईजी नहीं होता है। वी लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी आदिल हसन, वी लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, देयर इज नथिंग इज प्रोवोकेशन इनफ फॉर एनीवन टू डू समथिंग लाइक दिस. You cannot take law into your own hands. तहसीन, will you condemn this? सिविल सर्वेंट है वो मालिक नहीं है. खत्म करो ना, मैं वो मालिक नहीं है, सिविल सर्वेंट. Pranesh, if you can please put his fader down and I can make my points. Thank you. I have not spoken between anybody. I deserve the respect that I've given other 3 or 4 things. It is unbelievable. It is reprehensible. It is disgusting that a fellow citizen of ours was killed in this barbaric manner. It is unacceptable. Absolutely unacceptable. But Pranesh, with a lot of humility, you just gave the example of the MIM spokesman. You said there's no DG-IG outside your house. I agree. That does not mean that he should be killed. But in a procession that was going, where there have been incidences of stone pelting, at least the local police should have been alert. The minute there was any idea of a communal flare-up happening, whatever be the reason, it's not justified. The higher authorities should have been informed. Extra troops should have been brought in. These are SOPs by the Indian police, including UP police. None of this was followed. The buck stops at the chief minister. The chief minister, rather than communalizing this incident, should step down right away. He needs to step down. He needs to be sacked. He is signally responsible for 1 minute. I want the Congress leadership to say this by tweeting that, look, Ram Gopal Mishra deserves justice. The CM must resign. Will they do it, Shehzad? 1 second. Now, Tehseen has said, 1 second. Let me come in. Tehseen, just now the Ganesh Visarjan Yatra was attacked in Karnataka, and the Home Minister, rather than take accountability, said it was an accident. And Ganesh ji was put inside the police lockup van. उसमें सीएम का रेजिग्नेशन लेकर आप सेट करो ना पैरामीटर. दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अनएक्सेप्टेबल बोलना एक चीज है, आप बताइए जो मूल कारण है, यहां पर बोला जा रहा है प्रोवोकेशन था, तो कोई फिर बोल देगा कि 58 कार सेवक मारे गए, वो भी तो प्रोवोकेशन था ना भाई, वो भी तो प्रोवोकेशन था ना. आदिल जी, प्रोवोकेशन वाली थियरी बहुत दूर तक जाएगी. आप छुओगे और एक्शन की बात करोगे तो 58 कार सेवक मारे गए थे पहले, ये याद रखना. और आखिरी बात, मैं तो कह रहा हूं, कानून जब काम करता है तो ये कांग्रेस और MIM वाले, ये ताहिर हुसैन, ही किल्ड अंकित शर्मा. द मैनर इन विच ही किल्ड अंकित शर्मा, दीज टू सेड दैट ही वाज पेइंग द प्राइस फॉर बीइंग मुस्लिम. ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और MIM तीनों ने डिफेंड किया. UAPA में आज भी वो बंद है. Okay, we'll have to move on.